Hello and welcome to fdklasses. In this video, we are going to solve question number 1 of exercise 4.1 quadratic equation class 10th. My dear students, let me first introduce, give introduction about quadratic. Let us first understand what is quadratic equation. First of all, let us define equation. Any statement, कोई भी statement, any statement और एक्सप्रेशन जिसको हम एक्सप्रेशन भी कहते हैं एनी स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स कोई भी एक्सप्रेशन मैथ का कंटेनिंग जिसमें हमारे पास होगा कंटेनिंग इक्वलिटी दिस साइन एनी कॉल्ड इक्वेशन उसी को हम क्या कहते हैं इक्वेशन इक्वेशन इज नथिंग बट एनी स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स कंटेनिंग इक्वलिटी साइन इज कॉल्ड इक्वेशन सपोज देखिए 4x इक्वल टू 1 दिस इज कॉल्ड इक्वेशन बिकॉज इट कंटेन्स दिस पर्टिकुलर साइन इक्वेशन देखिए जो ही आपको इक्वल टू साइन हुआ इस साइड को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन दिस वेरी साइड इज कॉल्ड राइट हैंड साइड. This is the equation, simple equation. If the equation contains like something like variable, then it's called algebraic equation. If it is, it does not. If it is like this, it is also an equation because it contains equality, but this very time it's called arithmetic. An equation containing variable is called algebraic equation. An equation containing only numbers are called is called arithmetic equation. Now what is quadratic equation? As I have told you here, then any equation which contains variable is called algebraic equation. That algebraic equation and an equation in which power I think I power but particularly degree is highest power on variable is 2. Remember this thing. An equation in which power on variable is 2 called called quadratic equation. उसी को हम quadratic equation कहते हैं. For example 4x equal to 1. अगर आपको कोई पूछेगा इक्वेशन है हाँ इक्वेशन है बिकॉज इट कंटेन्स इक्वलिटी साइन क्या ये क्वाड्रेटिक है हाँ ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि x के ऊपर क्या पावर है 2 है 2 इज हेयर डिग्री अगर डिग्री 2 हुई तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं तो देखिए और एक एग्जांपल मैं देता हूँ 2x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. This is also quadratic equation because it has degree 2 here. Here the power on variable is 1 and here we don't have any power, that is 0 here. But what is the highest degree? Among these powers we have 2 as the highest power, that is degree equal to 2. So any expression, any equation in which the degree on the variable is 2 is called a quadratic equation. This is this is what quadratic equation is all about. Now let us give certain few more examples. Let us understand what is basic quadratic equation. Quadratic equation. General quadratic equation जो है वो है 2x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. वायर जहाँ पे ये जो a हमारा है ये है कोफिशिएंट ऑफ x² एंड जो b है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कॉल्ड constant term. So these are certain things that you have to remember while dealing with the quadratic equation. This is a general quadratic equation. If I give an example, let me give an example here. Now if you have to say what is a here in this particular example, a here is 4, what is b here, it is 4 again, what is c, it is 1. So comparing this thing with these two equations, we are getting a here 4, b here 4 and c 1. This is a quadratic equation. Now what you need to do, what are the types of questions that most of the time we are getting in the examination. First question, as I have told you, we have to just check whether the following, let me draw the text box here. We have to just check whether whether this is a quadratic equation or not. Remember, as I have already told you that you people, anything we have to check, it is not 2 here, it is square here. We have to check x plus 1 whole square equal to 2
times 3 minus x is a quadratic or not. What you have to do, you have to simply solve these, you will be solving, आप इसको solve करोगे। देखिए यहाँ पे दो टर्म्स है, ऐड नहीं होगा, होल स्क्वायर है, तो इट विल बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड वी नो ए स्क्वायर इज नथिंग, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 times a and b, right? It's 1 here. Now you have to multiply this thing with 2x, and it will be 3 to the 6, right? Now see, let us solve this thing. It is x square again here, 1 square is 1 again, 2 1 2, and is 2x equal to 2x minus 6. And we know the basics of the mathematics. If we have same term on the equality sign, on the opposite sides of the equality sign, then they will get cancelled, because it will come minus here, ये यहाँ पे माइनस आ जाता, प्लस माइनस खत्म हो जाता, तो ये इसको आप यहाँ से भी काट सकते हैं। तो देखिए क्या बचा हमारे पास, 2x प्लस 1, इसको अगर मैं इस साइड ले जाऊंगा तो ये माइनस था, ये प्लस बन जाएगा, 2x प्लस देखिए यहाँ पे बन गया 7 इक्वल टू 0। सो दिस इज द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। नाउ दिस वाज नॉट द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, इसको आपने सॉल्व करके स्टैंडर्ड, क्योंकि आप इसको फर्दर ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। जब मैं देख रहा हूँ ना स्टैंडर्ड में, क्या देख रहा हूँ मैं, x के ऊपर जो पावर है वो क्या है, जो कि ये है यहाँ पे हाईएस्ट, आप लिखोगे यहाँ पे डिग्री, डिग्री ऑफ x इक्वल टू 2, देयर फोर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही आपको यहाँ पे चेक करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही ईजी है 4.1 का, आपको सिंपली सॉल्व करना होता है, आपको देखना होता है कि कौन इसमें क्वाड्रेटिक है और कौन क्वाड्रेटिक नहीं है। नाउ ये आपका सेकंड पार्ट है इसी एक्सरसाइज का। देखिए सॉल्यूशन कैसा है, फिर से आपको चेक करना है कि क्या ये क्वेश्चन क्या आपको कर रहा है, वेदर इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, फिर लिखा है 2x, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2x ज़ा 2x, राइट। देखिए यहाँ पे सेम साइन नहीं है, आप इसको एक ही साइड में ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये माइनस था, ये प्लस चला गया, ये प्लस है, ये माइनस चला जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, कोई ऐसा लाइक टर्म्स, आई होप कि आपको पता होगा लाइक टर्म्स को ऐड होता है। एक्स स्क्वायर है, कोई लाइक टर्म नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये वाले दो लाइक टर्म्स है, दिस वन एंड दिस वन, सो इट इज माइनस, इट इज माइनस, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 4x, और साथ में 6 है, इक्वल टू 0। तो फिर से डिग्री क्या आ गई हमारे पास, डिग्री इक्वल टू 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, ऐसे ही आपको करना है ये। लेट अस सॉल्व थर्ड पार्ट। ठीक है, देखिए आपको इन बेसिक मैथमेटिक्स से आपको इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे होगा, देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि ये जो वाला, ये इसको मल्टीप्लाई होगा x को पहले x के साथ, तो इस x को पहले आपको इस x के साथ, फिर इस x 1 के साथ, इसको फिर इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। देखिए x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, एक्स वन ज़ा एक्स, पहले साइन इसको प्लस वन, प्लस प्लस टू प्लस से होता है, प्लस माइनस माइनस 2x, प्लस माइनस माइनस 2 वन ज़ा 2, फिर से x को मल्टीप्लाई किया, यहाँ से भी सेम होगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे प्लस है, तो ये बन जाएगा 3x आपका। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस x इंटू एक्स 1 माइनस x, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3। अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्क्वायर वाली, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, लेफ्ट हैंड में एक है, दूसरा राइट हैंड में, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए एक्स 2 है, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3x को 2x काटना है, 2x रहेगा -3। अगर मैं इनको एक ही साइड में ले जाऊँ तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे अपना ये -2 था, ये बन जाएगा प्लस, ये बन गया 0। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, -3x प्लस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये यहाँ से सॉल्व नहीं होने वाला, तो ये हमारा बन गया फाइनल एक्सप्रेशन। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो डिग्री है ना, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, वो क्या है इस टाइम, 1 है, 2 नहीं है, देयरफॉर इट इज लीनियर नॉट ए क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो फिर ये क्या है, ये लीनियर है। ये था आपका पहला, ये थर्ड पार्ट है। तो पार्ट आप खुद से करेंगे, जो आपका फिफ्थ पार्ट है, क्योंकि फोर्थ पार्ट आइडेंटिकल है थर्ड पार्ट से। देखिए फिफ्थ पार्ट पर्टिकुलर में यहाँ पे ये भी इजी बात है, आपको फिर से देखना है कि क्या क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो वो आपको यहाँ पे चेक करना है। क्वाड्रेटिक मैंने आपको पहले ही कहा कि वहाँ पे आपके क्या हाईएस्ट डिग्री आनी चाहिए, 2 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये जो है आपको क्यूब
क्यूब यहाँ पे है, यहाँ पे दो टर्म्स है ऊपर। आपको ये फॉर्मूला, आई होप कि आपको ये फॉर्मूला पता होगी। ए प्लस, लेट मी राइट दिस, ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। जो आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको यूज़ होगा ए यहाँ पे माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब होता है, फिर माइनस बी क्यूब होता है, फिर माइनस 3a²b, फिर प्लस 3ab²। याद रखिएगा ये दो फॉर्मूला आपको हर हमेशा याद होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आते हैं मैथमेटिक्स में, ये दो फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। माइनस में क्या होता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है, फिर प्लस में क्या होता है, सारे टर्म्स में प्लस होता है। ए के स्क्वायर पहला, फिर बी ऐसे रखना है, फिर ए ऐसे रखना है, बी का स्क्वायर करना है आपको। अब देखिए इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो बन जाता है मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, टू का अगर मैं क्यूब करूँगा दैट विल बी 8 हियर, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8। फिर है देखिए 3 ए है यहाँ पे x, फिर है बी है यहाँ पे 2, लेकिन ए को क्या रखना है आपको, स्क्वायर रख। फिर प्लस 3 है, ए फिर से अब लीनियर रखना है, फिर बी का हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए ये 2x बाहर है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ पे ऐसे ही x इंटू एक्स स्क्वायर होता है एक्स क्यूब, फिर 2x 1 ज़ा 2x। अब देखिए यहाँ पे क्यूब है, अब एक ही साइड से सारे लेते हैं, प्लस 8 है यहाँ पे, प्लस 3 टू ज़ा 6 एक्स स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4, यहाँ पे इसका स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पे x, फिर ये आ जाएगा -2x³ माइनस बन जाएगा यहाँ पे +2x इक्वल टू 0। एक्स क्यूब है, लाइक टर्म यहाँ पे है, ये प्लस है माइनस तो माइनस बन जाएगा -x³ क्योंकि दो को एक काटना है। 8 यहाँ पे 6x स्क्वायर है, कहीं पे 6x स्क्वायर नहीं है तो ये वापस आएगा। यहाँ पे 12x है, यहाँ पे भी लीनियर है 12, और हो गए 14x। यहाँ पे 8 खाली है जो कि कॉन्स्टेंट टर्म है, वो ऐसे ही रहेगा। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि ये सारे अनलाइक टर्म्स है। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, डिग्री जो है यहाँ पे डिग्री क्या आ रही है, 3 आ रही है, विच एम्प्लाइज ये क्या है, इट इज़, क्या ये क्वाड्रेटिक है, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। जब डिग्री 3 होती है इसको क्वाड्रेटिक नहीं कहते, इसका नाम होता है क्यूबिक। इसी तरह आपको फिफ्थ पार्ट इसका करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलरली 4.1 के पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।